Praise be to the name of our beloved Lord Jesus Christ. तो यीशु मसीह के नाम का महिमा हो। It is a great joy for me to be here once again मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मैं आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। as an answer to your prayers. God gave me a blessed time in Kerala. आपके प्रार्थना के बदौलत प्रभु ने मुझे केरला में अद्भुत समय दिया। Not only I enjoyed pure oxygen, वहाँ पे एकदम प्योर ऑक्सीजन वहाँ पे था। I ate Kerala food, केरला का खाना खाने को मिला। and not only that, God used me to do the ministry in many places. और प्रभु ने बहुत सारे जगह पे मुझे सेवा कार्य करने का अवसर दिया। Almost all the Sundays I have shared God's word in different churches in Malayalam language. हर इतवार को मैंने विभिन्न कलीसिया में मलयालम भाषा में प्रभु के संदेश सुनाया। And that's heavenly language. ये स्वर्गीय भाषा। No, your language also heavenly only. Okay. So when I come to Baraka, I feel I have come home. जब मैं बैरका में आता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर पे आया हूँ। I'm not worthy to share God's precious word with you. मैं आपके सामने प्रभु का वचन बांटने का योग्यता मुझमें नहीं है। We'll read one verse from Genesis chapter 15. उत्पत्ति के किताब 15 अध्याय से हम एक पद को पढ़ते हैं। We'll read the first verse. उत्पत्ति के किताब 15 अध्याय के पहला वर्ष। You read in Hindi. हाँ, उत्पत्ति 15 अध्याय पहला वर्ष 16 नंबर पे है। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। In English it says, after these things the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham, I am your shield. Your reward shall be very great. दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। Shall we look to the Lord in prayer? हम प्रार्थना करेंगे। Our dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have given us. हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अद्भुत समय हमें दिया। We acknowledge our unworthiness to come before you. अयोग्यता को मानते हैं, हम तेरे आगे आने का हमें कोई क्षमता नहीं है। Trusting in the Lord that you will feed us from your word. हम आपको ये भरोसा मानते हुए कि आप अपने वचन से हमें तीर्थ करेंगे। Because you love us, Lord, please talk to each one of us. प्रभु आप हमसे प्रेम रखते हैं, इसलिए हम सबसे जो बातें कर। Give us a great desire to listen your word. हमें ये भूख का प्यास दे कि तेरे वचन को हम सुन सकें। Prepare our hearts that we may listen and also obey your word. हमारे हृदय को इस तरह बना कि तारे हम तेरे वचन को सुन सके और उसके आगे पालन कर सके। We both of us were committed in your loving hand and anoint us, please. हम दोनों को तेरे हाथ में देते हैं, हमें अभिषेक कर। Speak to us. हमें से बात कर। And bless us with spiritual blessing. और हम आत्मिक आशीष से हमें मालामाल कर। In the Lord Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना रखते हैं। Amen. The first verse begins with, after these things the word of the Lord came to Abraham. पहले पद हमने जो पढ़ा, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास That means something happened just before that. इसका मतलब है कि उससे पहले कुछ हुआ था। And in chapter 14, the previous chapter, we read certain things. और इस उससे पहले के 14 अध्याय में हम कुछ बात पढ़ते हैं। And there are kings, they came against the Sodom and Gomorrah and those people. 4 kings against 5 kings. और ये 4 राजा 5 राजा के विरोध में खड़ा हुआ था। And then they defeated this Sodomite kings and their company. The 4 kings were defeated. और वो सदोम के 4 राजाओं को उसने विजय दिया था। And then Sodom in where Lot was living, and they took him and his family as captives. और सोदोम के ऊपर विजय करने के बाद सोदोम में जहाँ पे लूत था उसको बंदी बना के ले गए। And Abraham comes to know that thing, and then he goes to rescue Lot and his family. और अब्राहम को ये बात जान पड़ा और अपने लूत को बचाने के लिए वो निकला। And in that incident, you will notice
the number of people Abraham gathered to go against the thousands and thousands of people army, there's only 318 people. और ये अद्भुत बात है कि उस समय अब्राहम ने हजारों के तादाद से लड़ने के लिए 318 अपने सैनिकों को ले गया। And God gave Abraham great victory और प्रभु ने उत्तम बड़ा विजय अब्राहम को दिया just with this 318 people. और सिर्फ ये 318 लोगों से। And Abraham knew very well what God has done. और अब्राहम को ये बखूबी पता था कि प्रभु ने कितना बड़ा काम किया है। And then we read that Melchizedek comes and he blesses and then he goes. और यहाँ पे एक मलकीसेदेक आता है और वो आशीष देके जाता है। 18, 19, 20 verses of chapter 14. 18 अध्याय के है ना? 14 अध्याय के 18, 19 और 20 पद में ये बात। Please read that 18 to 20. You read that. और ये 14 अध्याय के 18, 19 और 20 में पढ़ रहा हूँ। तब शालोम का राजा मलकीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी की अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों के तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां दिया। And here Melchizedek is helping Abraham not to be proud. और यहाँ पे मलकीसेदेक अब्राहम को ये बात बता रहा है कि वो घमंडी ना बने। He reminds him a particular verse in verse 20, and blessed be God most high, who has delivered your enemies into your hand. और मलकीसेदेक ये अब्राहम को ये बात 20 पद में ये ध्यान दिलाता है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। He is reminding him not to be proud. Remember, it is the Lord God Almighty only delivered your enemies into your hand. और मलकीसेदेक अब्राहम को ये बात बखूबी बता रहा है कि वो घमंडी ना हो, ताकि परमेश्वर ने ही, परम प्रधान ने उसको द्रोही को उसके वंश में कर दिया है। And then after that we read that kings, that Sodomite, the king, they were saved, and then they wanted to express their gratitude to Abraham. और वहां पे उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सदोम के राजा बच गया और वो अब्राहम को भेंट देना चाहता था। And then he says, give me the persons, but take the verse 21, I'm reading. And the king of Sodom said to Abraham, give me the persons, but take the goods for yourself. But Abraham said to the king of Sodom, I have lifted my hand to the Lord most high, possessor of heaven and earth, that I would not take a thread or a sandal strap or anything that is yours, lest you should say, I have made Abraham rich. 21, 22 and 23. 21, 22 और 23 पद में पढ़ रहा हूँ। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कह पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। Now, in this chapter 14, Abraham conducted himself in such a godly manner, God wanted to talk to him. और यहाँ पे 14 अध्याय में अब्राहम ने ऐसे ईश्वरीय भक्ति के साथ व्यवहार किया कि 15 अध्याय में आके प्रभु उससे बात करना चाहा। In 15th chapter, first word, there are 3 fundamental principles we can learn. यहाँ पे 15 अध्याय के एक पद में 3 बुनियादी बातें हम सीख सकते हैं। The Lord says, fear not. प्रभु कहता है कि आप मत डरो। That's the first thing. पहला बात। Second thing, I am your shield. और दूसरा बात, मैं ही तेरा ढाल हूँ। Number 3, और तीसरी बात, your reward shall be great. और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। 3 things. 3 बातें। What is the first thing? पहला बात क्या है? Fear not. मत डर।
when you read that portion, you will wonder why God is telling, fear not, because there is no chance, there is no incident that Abraham became afraid. और यहाँ पे जब हम प्रभु देखते हैं कि प्रभु ने उसको कहा कि मत डर, तो हम देखते हैं कि वहां पे ऐसा कोई वातावरण नहीं हुआ था जिसे अब्राहम को डरना पड़ा था। Somebody said, fear not, fear not. God repeated it many times, every day, one time, like that way. ऐसा कहा जाता है कि हर दिन प्रभु ने कहा है कि मत डर मत डर। Fear not, if God says, he doesn't say just like that. और जब प्रभु जब बोलता है कि मत डर, तो ऐसा यूं ही नहीं बोलता। There are three things are there. तीन बातें वहां पे हैं। In that the first one is fear not. पहली बात ही मत डर ऐसा है। This is the first message he needs at this point. और ये पहला संवाद इस समय में चाहिए था। That means he was really afraid. उसका मतलब यह है कि अब्राहम अंदर ही अंदर डर रहा था। Why he should be afraid? क्यों ऐसा उसको डरना पड़ा? I'll tell you the reason. मैं कारण बताता हूँ। Abraham knew very well, I defeated thousands and thousands of army people with this 318 people. अब्राहम को ये बात पता था, उसने हजारों की तादाद की संख्या में जो सेनाओं को 318 सैनिक से विजय प्राप्त। Yeah, it's true. I defeated them with the 318 people. ये सत्य बात है कि मैंने 318 सैनिकों के द्वारा हजारों पे विजय प्राप्त किया। He also knew any moment if they can come back and attack and finish the 318 people is nothing. वो अब्राहम को अंदर ही ये डर था कि किसी भी समय वो हजारों के तादाद में आके वो 318 को मार सकते थे। When the Lord speaks to somebody something, that is the first thing that person needs. और जब प्रभु किसी से बात करता है तो उस व्यक्ति को पहला बात वही चाहिए होता है। He goes to the root cause. और प्रभु उस जड़ पे जाता है। And so we see that do not be afraid. और यहाँ पे देखते हैं कि तुम मत डर। Abraham was afraid. अब्राहम डरा हुआ था। Anytime these people will come back. किसी भी क्षण ये लोग वापस आ सकते। They know very well that we are only 318 people. उनको ये बात पता है कि हम लोग सिर्फ 318 सैनिक हैं। So they can come and finish us anytime. और किसी भी समय आके हमें समाप्त कर सकते हैं। And Abraham was worried about that. और अब्राहम को डर था ये बात का। That is in his heart. वो उसके हृदय में था। God knows the heart. परमेश्वर हृदय को जानता है। And he says, don't be afraid. और प्रभु कहता है कि मत डर। And then the second thing he says, I am your shield. और दूसरी बात में कहता है कि मैं तेरा ढाल हूँ। What is the meaning of that? उसका मतलब क्या है? I am the shield, not some instrument or some material. I am your shield. और ये कोई धातु कुछ भी नहीं है, मैं तेरा ढाल हूँ। No one can penetrate through that I am and harm you, Abraham. और कोई भी मैं जो तेरा ढाल हूँ उसको छेद के तेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Do you know, beloved, the meaning and depth of that promise? क्या आपको इस प्रतिज्ञा का गहराई में पता है? God is telling to his children today, I am your shield. प्रभु अपने लोगों को आज बता रहा है कि मैं तुम्हारा ढाल हूँ। And then the third one says, your reward shall be very great. और यहाँ पे तीसरी बात बताता है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। Your reward will be great, very great. तेरा जो बड़ा ही बड़ा प्रतिफल Some है। version it will be exceedingly great. एक अध्याय में से बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। Your reward. आपका जो In the worship फल है। message, Brother Shekaran was telling about what God has prepared. Those people who love the Lord, no eye has seen, no mind has known, no heart has come into that. That is the word of God. That's the reward God has kept us. And then he says, I am your reward. और यहाँ पे भाई शेखरन जो आराधना के रूप में वचन दे रहे थे कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उसको कितना बड़ा प्रभु ने उसके लिए बचा के रखा है, बना के रखा है, और मैं वो प्रतिफल हूँ। Well, second verse, Abraham said, Oh Lord God, what will you give me? I continue childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus. और ये दो पद में अब्राहम कहता है, दो पद, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरा घर का वारिस ये दमस्क वासी
एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? Abraham continues in verse 3, and Abraham said, Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir. और ये कहते जाता है, 3 पद में अब्राहम कहता है, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। And the verse 4 says, And behold, the word of the Lord came to him, This man shall not be your heir, your very own son shall be your heir. तब प्रभु का 4 पद, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। And fifth verse, and he brought him outside and said, Look toward the heaven and number the stars if you are able to number them. Then he said to him, So shall your offspring be. 5 पद, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। Scientist made an research on how to count, how long it will take to count the stars in the sky. विज्ञानियों ने ये तारा को गिनने के लिए कितना समय लगेगा, वो एक अनुमान निकाला है। They say somebody suppose counts every one star in 1 second. अगर वो ऐसे कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक तारा को एक सेकंड में One, एक two, एक three. करता है, 1 second, one star he counts. एक सेकंड में एक तारा को गिनता है, It will take to complete the counting. It will take 2,500 years. अगर एक व्यक्ति एक सेकंड में एक तारा को गिनता है तो उसको पूरे ब्रह्मांड के तारा को गिनने में 500 साल लगेगा। That's more than 2 days according to God's reckoning time. हाँ, प्रभु के लिए वो सिर्फ 2 दिन का काम है। 1,000 years is for 1 day. और प्रभु के लिए 1000 का दिन Well, by the way, the Lord said that the day you eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, that same day you will surely die. और प्रभु ने कहा कि जिस दिन तुम ज्ञान के उस पेड़ में से खाओगे, उसी दिन आप मरोगे। Nobody lived more than 1,000 years, my beloved. 1000 से ज्यादा साल कोई भी नहीं जिया है। What is the one who lived 969 years? Methuselah. मथुसेलह 969 साल He जिया, also could not reach 1 day, or that he died. और प्रभु के हिसाब से वो भी एक दिन तक नहीं जिया। The Lord said, that day you eat, the day you will die. प्रभु ने कहा, जिस दिन आप उस फल को खाओगे उसी दिन मरोगे। Nobody lived more than 1 day. प्रभु के हिसाब से कोई भी एक दिन से ज्यादा नहीं जिया, Nobody can live more than 1 day. और कोई भी एक दिन से ज्यादा नहीं जी सकता। That means more than 1,000 years. उसका मतलब है 1000 साल से ज्यादा। Okay, so here we read that many 1 second, and if we count 2,500 years, it will take for a man to count the whole stars. पूरे ताराओं को गिनने के लिए एक मनुष्य को 2500 साल लगेगा। It will not work out. ये हो ही नहीं पाएगा। And then so shall be your offspring. इसी तरह के तुम्हारे बच्चे होंगे। Okay, the 6th verse we all will read together. That is a very, very important verse. 6 पद सब मिलके पढ़ेंगे। Chapter 15 verse 6. 15 अध्याय के 6 पद सब मिलके पढ़ेंगे। Okay, shall we start? And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. Scripture says he believed what God said, and because of that thing, he said, "You are a righteous man." प्रभु का वचन ये कहता है कि अब्राहम ने जो प्रभु ने कहा उसको विश्वास किया, और प्रभु के सामने वो धर्मी ठहराया। God's rule is even today the same. प्रभु का वचन आज भी वही है। As many as received him, to them gave he power to become the children of God, even to them that believe on his name. Believe, received. जितनों ने उनको ग्रहण किया, उनके नाम को विश्वास किया, उसको संतान होने का हक दिया। Abraham believed in God. अब्राहम ने यहोवा पे विश्वास किया। And what a privilege for all of us sitting here to believe on the true living God.
कितना सौभाग्य की बात है कि हम सब जो आज यहाँ पे बैठे हैं, आप ये जीवते परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। Sometimes I used to think, I have shared it earlier, when I see this thelawala, the vegetable vendor, they push the thela and sell the vegetables. जब भी ये कभी भी रोड साइड में जो ठेले वाले होते हैं उनको मैं देखता हूँ, God reminds me one day, प्रभु मुझको ये बात याद दिलाता है, Jacob, I could have made you like that way and the thelawala like you here. या जैकब, मैं तेरे को इस ठेला वाला जैसा मैं बना सकता था और ठेला वाला तो तेरे जगह यहाँ पे दे सकता था। Beloved, nothing in us to boast. हमारे पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। Paul declares it when he came into the family of God. Salvation by grace through faith. पौल ये जब प्रभु को पाता है तो बोलता है कि उद्धार अनुग्रह से ही मिला है। And then the Lord said to him, and 7th verse, I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. और 15 अध्याय के 7 पर तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। But Abraham continued. लेकिन अब्राहम बढ़ता गया। But he said, Oh Lord God, how am I to know that I shall possess it? लेकिन अब्राहम आगे बढ़ता गया, उसने पूछा, उसने 8 पर उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूं? And verse 9 onwards he says to have that covenant relationship God is going to make. Yes, God is going to make a covenant with Abraham. और 9 पद में यहोवा बोलता है, प्रभु बोलता है कि मैं तेरे साथ एक करार बांधूंगा। This covenant means the animals will be cut into two. ये करार का मतलब है कि एक पशु को 2 भाग में काटा जाएगा। Those who are making that covenant, both the parties, they will go through the middle of that thing. और वो जो लोग करार में हैं वो उसके बीच से होके गुजरेंगे। That is, they are agreeing what they already decided and verbally told, we will keep it. और ये दोनों पक्ष में ये मानते हैं कि हमने जो करार बांधा है हम उसमें रहेंगे। And what is the meaning of that? Both parties, they will go through the middle of that. Both the animals one part will be in the left side and one part will be in the right side. That person, 2 people will be passing through that. The meaning is, if I break that promise or covenant and let my life will be like this animal. और जब ये 2 पशु को आधा बीच में काट के इस साइड और इधर रखा जाएगा और बीच में से वो 2 चलेंगे, अगर उसने वो करार को बांधा, वंचित किया, उसको नहीं माना, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जीवन भी इसी तरह का पशु जैसा हो। That's the meaning behind the principle behind that act. और ये कार्य का ये अर्थ होता है। And then God told Abraham to do certain things, and verse 17 onwards we'll read. और प्रभु ने कुछ काम बताया अब्राहम को करने के लिए। Chapter 15, 17 onwards. 15 अध्याय के 17 पद से हम पढ़ते हैं। Read that one. 15 अध्याय के 17 पद। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठा था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। 18 also. इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक बड़े नद तक, जिनका देश है, अर्थात केनियों, कन्निजियों, कदोमियों, हित्तियों, परिजियों, रुपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश में ने तेरे वंश को दिया है। Okay, in that middle 18 verse middle button, to your offspring I will give this land. और यहाँ पे ये लिखा है कि to your offspring I will give this land. 18 का middle में है, इंग्लिश में। Chapter 15 maybe हिंदी में verse. Okay. हिंदी में या 21 के लास्ट में तेरे वंश को करेक्ट 21 के जो अंत में जो लिखा है का देश में तेरे वंश को दिया है। करेक्ट, थैंक यू। So I will give this land to you. तेरे वंश को, ये 21 के अंत में जो लिखा है, तेरे वंश को दिया है। Either to your offspring. तेरे वंश को मैं दिया है। Now one day, one good morning time, Sarah comes. The 21st century Sarah comes to Abraham. और एक दिन 21वीं शताब्दी के सारा
आता है अब्राहम के पास। 21st century Sarah. 2100 आज के युग के सारा आती है। सुनिए तो, सुनिए तो, you understood, no? I do not know exactly what is that. Okay, that expression. So I want to tell you something. What, Sarah? Tell. वो अब्राहम सारा बोलती है कि सुनिए तो अब्राहम बोलते हैं क्या बताओ। See, I think you know my condition. No, I cannot give birth to a child. God has closed my womb. हाँ, आपको पता है कि मेरा गर्भ प्रभु ने बंद किया है। It is written there, insisted is बच्चा written पैदा there. नहीं कर सकती। I'm just briefing it. अब मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है ये बात। I think we need to help God. और मुझे लगता है कि हमें प्रभु को सहायता करना चाहिए। He is in need of our help, you know. और प्रभु को हमारे सहायता का जरूरत है। I have an idea. मेरे पास एक विचार आया है। What idea, Sarah? Tell. अब्राहम बोलता है क्या आइडिया है बताओ। See, we went to Egypt, no? We brought many servants in that. One Hagar was there, no? Maid. हम जब मिस्र में थे तो बहुत सारे नौकर लेके आए थे, उसमें हेगार था। Don't worry, she is my maid only. I will give to you. Don't worry. वो मेरी दासी है, मैं आपको दूंगा हगार को। And you, with her, we can have a child. और उसके तहत हम अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। I think we should be practical. No, we should be thinking how we can carry out God's plan in our life. क्या हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा ना, कैसे हम प्रभु को सहायता करके हम प्रभु के उद्देश्य को बढ़ा सकते हैं आगे। No, Sarah, God very clearly spoke to me. I will give your offspring this land. That means we will have a son. नहीं सारा, प्रभु ने मुझे बड़े साफ शब्दों में कहा कि मेरे अपने शरीर से मेरे को प्रभु देगा। That only I am telling. We will have a son through her. वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके तहत, हगार के तहत हमें एक बच्चा होगा। And I want to read that particular portion, verse 2, the last portion. I don't know, Hindi it is there. And Abraham listened to the voice of Sarai. Which one? It is in verse 2 end in English. Verse 2, chapter 16. 16, अच्छा 16 अध्याय के 2 के आखिरी भाग। And Abraham listened to the voice of Sarai. साराई ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तेरी तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। साराई की ये बात अब्राहम ने मान ली। Abraham listened to the voice of Sarai. साराई की ये बात अब्राहम ने मान ली। We keep a bookmark there and turn to Genesis chapter 3:17. यहाँ पे मार्कर लगा के उत्पत्ति 3 अध्याय के 17 पद में आते हैं। Come back to उत्पत्ति 16. Genesis 3:17. उत्पत्ति 3 अध्याय के 17 पद। Okay. Please read that. 3 अध्याय के 17 उत्पत्ति। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। This is God is telling. ये प्रभु कह रहा है। Because you listen to the voice of your wife and then disobey me. क्योंकि तूने अपनी पत्नी के बात सुन के मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है। And because of you, Adam, the earth is cursed. और तेरे कारण इस भूमि शापित हुआ है। Listening to the voice of wife is a sin. क्या अपने पत्नियों के बातों को सुनना क्या पाप है? No. It's not a sin. पाप तो नहीं है। And sometimes God said to the man, you listen to your wife. कभी कभी बोलता है कि तुम अपने पत्नी की बात को सुनो। Okay, we'll come back to chapter 16. 16 पद में आता है। आइए। Listening is important. Then what we should do? सुनना महत्वपूर्ण है तो क्या करना चाहिए? Listen, and then you take it to the Lord in prayer. Lord, what do you want me to do? सुनना पड़ेगा, लेकिन आप उसी बात को प्रार्थना में प्रभु के साथ ले जाओ। You know, this Levites were chosen with a purpose. Levites, no? लेवी priesthood. लेवी को एक उद्देश्य से चुना गया था। So what is the reason for that?
उसका कारण क्या था? We know that under the leadership of Aaron, they made a golden calf and started all this rock dance or pop music and all started at there. और वो जो आरोन के नेतृत्व में उन्होंने वो सोने का वो प्रतिमा बनाया, वो बछड़ा बनाया। Moses was not with them at that time. उस समय मूसा उनके साथ नहीं थे। And the Lord said, Moses, this is happening in the camp, you go down. और प्रभु ने बोला कि मूसा ये हो रहा है, आप जाओ नीचे, वापस जाओ। And Moses was coming from the top of the mountain and halfway, and he saw this all immoral things are happening in there. और जब मूसा उस पहाड़ से आधे रास्ते पहुंचा था तो उसने ऐसे पापमय दृश्य देखा। The meekest man on the face of the earth got angry. और सबसे नम्र व्यक्ति जो संसार में, उसको गुस्सा आया। He shouted, 2 million people heard, 20 lakhs people. और उसने वो जो जब चिल्लाया, वो चिल्लाने लगा तो 20 लाख लोगों ने उसको, Who is on the Lord's side? Come up here. जो प्रभु के साथ में वो इस साइड आए। 20 lakhs of people they heard. 20 लाख लोगों ने ये सब कुछ सुना। Only one group stood up, and then he continued, come up here, and they started walking towards Moses. उसमें एक झुंड वही प्रभु के वो आया और मूसा ने उनको They stood with Moses. और वो मूसा के साथ खड़ा हुए। And when they stood with Moses, Moses said, go and kill those fellows. और जब वो लोग झुंड मूसा के साथ खड़े हुए तो मूसा ने कहा, सारे अपने लोगों को मार डालो। And this Levites, और वो लोग लेवी, they didn't even consider the person who are going to kill is my brother, my supporter, my good friend, nothing. When it comes in between you and God, nothing should come in between. That's Levites. और जो वो लेवी हैं, जब लेवी ने ये नहीं देखा कि उनके भाई हैं, मित्र है, कि कोई है, सबको मार डाला। जब परमेश्वर आपके बाद में बीच में कोई आता है, हम उसको कुछ भी ना छाने, ये लेवी है। They obeyed the Lord. उन्होंने प्रभु के बात को सुना। My beloved, it's not easy to obey the Lord. प्रभु के आज्ञा को सुनना आसान नहीं है। We believe what God said, we obey also, but not all. हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, हम मानते भी, लेकिन सारी बातें नहीं मानते। And Jesus was speaking to the two people going to the Emmaus journey, and he said one time, oh foolish ones who do not believe all what God says, all what the prophets have said. आप जो दो इमास के रास्ते में जब प्रभु यीशु मसीह दो व्यक्ति के साथ बात कर रहा है, तो प्रभु बोल रहा है कि ये धिक्कार उन लोगों पे जो प्रभु की बात तो सुनते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं सुनते। If you believe some of the things, God will call you the same name, oh foolish ones. अब थोड़ी बातों को हम विश्वास करते हैं तो हमें भी प्रभु मूर्ख करके बुलाता है। Not believing all what God says. हम सब बातें जो प्रभु बोलते हैं उसमें Abraham listened to the voice of Sarai. अब्राहम ने साराई की बातों को सुना। And then Sarai, Abraham's wife, took Hagar, the Egyptian, her servant, and gave her to Abraham, her husband, as a wife. Now that is in 16th chapter, 3rd verse. और ये 16 अध्याय के उत्पत्ति 30वां वर्ष। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री साराई ने अपनी मिस्री दासी हजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दे दिया कि वो उसकी पत्नी हो। And you know the story. And he went into Hagar and she conceived. And when she saw that she had conceived, she looked with contempt on her mistress Sarai. 4 पर वो हजिरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तुच्छ, contempt on her mistress. तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। Remember that verse very well because we are going to come into that verse again after some time. इस पद को आप गौर करें, हम उसमें दोबारा आएंगे। When she was conceived, this Hagar looked at Sarai with contempt, Bible says. और जब वो हगार गर्भवती हुई तो उसने सारा को एक तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। And now Sarah deals in a different style. Sarah becomes the head of the family for some time. और सारा उस परिवार का मुखिया बन गई थोड़ी सी। And Sarah said to Abraham, may the wrong done to me be on you. What he said, may the wrong is done to you will be on you.
पांच पर तब साराई ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे ही सिर पर हो। I gave my servant to your embrace, and when she saw that she had conceived, she looked on me with contempt. मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती थी तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। And she goes further. May the Lord judge between you and me. Look at that. The words she spoke. और इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। Who gave this idea? She only gave this idea. और ये पूरा विचार देने का काम किसका था? Now she is blaming her husband. और वो अभी अब्राहम को दोष लगा रही है। May the Lord judge between you and me. यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। But Abraham said to Sarai, the gentle, loving, caring, providing, loving husband said, it's not there. It's not like that. Okay. Abraham said to Sarai, verse 6, behold, your servant is in your power. Do to her as you please. Then Sarai dealt harshly with her and she fled from her. 16 अध्याय के 6 पद, अब्राहम ने साराई से कहा, देख तेरी दास तेरे वश में है, जैसे तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब साराई उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। I don't know what Abraham would have thought at this moment. और मुझे नहीं पता अब्राहम इस समय में क्या सोच रहा होगा। I should not have listened to my wife. मुझे अपने पत्नी की बातें, साराई की बात नहीं सुनना था। When son was born, she became pregnant and I'm in trouble. और ये हगार गर्भवती हुई और मुझे समस्या आ खड़ा हुआ। And she's blaming me. और वो मुझे दोष लगा रही है। She only gave her maid servant to me. और वो खुद ही अपनी दासी को मेरे पास भेजी थी। And then he said, do whatever you want to do with her. What a sad thing, isn't it? और अब्राहम ने कहा, जो तुझे ठीक लगे वही हगार के साथ कर। And the angel of she fled from her. She ran away. और हगार हजीरा वहां से भाग गई। And then we read that the angel of the Lord meets Hagar. और वो हजीरा से स्वर्गदूत उसका मुलाकात हुआ। And he's asking, what are you doing here? Where are you going? और स्वर्गदूत हजीरा से पूछता है, तू कहाँ जा रही है? And 9th verse, very important verse. और 9 पद में Okay, we'll read it that one. I'll read it in English and then you read it in Hindi. Okay, you look into that verse. The angel of the Lord said to Hagar, return to your mistress and submit to her. 9 पद, यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। When you read this one, what do you feel about that? जब इस वचन को पढ़ते हैं कैसा आपको होता है? Lord, what a mental torture this woman has gone through. Now you are telling, go back and be submit to her and receive some more torture. प्रभु, कितना मानसिक ऐसे टॉर्चर में, वेदना में वो गई है और आप उसको कह रहे हैं कि आप अपनी स्वामिनी के पास चले जाओ। Lord, what you are telling is not right. I don't think you are right. प्रभु, आप जो कह रहे हो ये सही बात नहीं है। This Sarai tortured her and she ran away from that, and you are telling go back and submit to her. और ये साराई ने ये हजीरा को इतना तकलीफ दिया और आप कह रहे हो कि आप उसके पास वापस जाओ। My beloved, study the word, you will learn something new there. Okay. और जब आप वचन को पढ़ते हैं हम कोई नया सीखते हैं। I'll come again there after some time. And then he says to Sarah, angel said to the Lord, said to her, I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. The verse 10. 10 पद में, और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुताई के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। And then he says, you will have a son and you will name her Ishmael, because the Lord has listened to your affliction. और 11 पद, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। And verse 15, and Hagar bore Abram a son, and Abram called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael. 15 पद, हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राम ने उसके पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था इस्माइल रखा। Abraham was 86 years old when Hagar bore Ishmael to Abraham. 16 पर, जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया उसका समय अब्राम 86 वर्ष का था। 86 years. उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। And the very next verse in next chapter, first verse says, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him
और 17 पद का उसका अगला पहला ही वर्ष में कहता है, पहला पद में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। What happened to that 13 years? और ये इसके 86 से 99 साल 13 वर्ष क्या हुआ? God did not speak to Abraham. उस 13 वर्ष के अंतराल में प्रभु ने अब्राहम से बातें नहीं किया। He was teaching a lesson. और प्रभु अब्राहम को ये शिक्षा दे रहा था। You did not listen to me, you listened to your wife. तुमने मेरा नहीं सुना और अपनी पत्नी का सुना। You should have consulted with me. तुझे मुझे सलाह लेना चाहिए था। You did not. तूने नहीं लिया। You listened to the words of your wife. और तूने अपने पत्नी की बातों को सुना। Now you have to bear the consequence. और इसका फल तुझे भुगतना है। 13 years God did not speak. 13 साल अब्राहम से यहोवा बात नहीं किया। My beloved, one of the terrible things God's children will face is this one: God doesn't speak to you. सबसे भयंकर बात प्रभु के लोगों के लिए ये है कि प्रभु उनसे बात करना छोड़ दे। It is very terrible. ये बहुत भयंकर बात है। Let it not happen in your life. ये हमारे जीवन में ना हो। Repent before the Lord, God will speak to you. प्रभु के आगे हम पश्चाताप करें ताकि प्रभु हमसे बात करें। And when Abraham was 99 years old, again the Lord appeared to him. I am God Almighty. Walk before me and be blameless. God did not forget the promise he made. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। Okay, before one more thing I wanted to tell in chapter 16, what the Lord is telling, and the verse 9. 16 अध्याय के 9 पर यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। You know, Genesis 16:4 we read, and Abraham listened to the voice of Sarai. और यहाँ पे 16 अध्याय के 4 chapter 4 verse 4 of chapter 16. और 16 अध्याय के 4 पर the last verse. She had conceived, she looked with contempt on her mistress. That is verse 4, 16. And verse 9 of 16, he says, the angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit to her. Why? What is the reason for that? और यहाँ पे जब 16 अध्याय के 4 पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। और ये 16 अध्याय के 9 पर यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। I'll tell you the reason why God said return, go, and that you suffer that mental torture. और मैं आपको समझाता हूँ कि प्रभु ने क्यों हाजिरा से कहा कि तू वापस जा। God knew from where it began. और प्रभु को एक बात पता था ये शुरू कहाँ से हुआ है। Sarah tortured her, that's true. सारा ने उसको तकलीफ दिया, and she ran away. और वो भाग गई। And then the Lord is telling, go back. और प्रभु उस हाजिरा को कह रहे तू वापस जा and submit to her. और उसके वंश में हो ले। Why did God say to Hagar, go and submit to your mistress? प्रभु Even though Sarah was very cruel to her. प्रभु ने हाजिरा से ये क्यों कहा कि जाके साराई के वंश में हो ले, जबकि साराई ने उसको बहुत तकलीफ दिया था। What's the main reason is Hagar began. और जो मुख्य कारण है ये शुरू हगार ने किया था। Yeah, what is that? When she saw she became pregnant, she started contempt on her mistress. हाजिरा ने इसलिए शुरू किया था कि जब हाजिरा गर्भवती हुई, उसने अपनी साराई को तुच्छ नजर से देखने लगी। And then Sarah reacted, tortured her. That's true. और उसके बाद ही साराई ने उसको तकलीफ दिया। From where it began. शुरू कहाँ से हुआ था? You were contemning. You are Mr. तुच्छ जानते, mistress को। तुम साराई ने हाजिरा ने ये बात शुरू किया था जब वो गर्भवती हुई थी, वो साराई को तुच्छ जानने लगी। You have to reconcile. और आपको मेल मिलाप करना है। This is the reason God sent her back to her. यही कारण था कि प्रभु यहोवा ने हाजिरा को वापस अपने मालकिन के पास भेज दिया। And then the Lord, now we'll read one more thing and close here. The root cause God always goes into. और जो जड़ का बात था वही था। Okay, now please turn with me to Matthew chapter 14. मत्ती 14 अध्याय में आए।
It's a familiar passage. जाना पहचाना भाग है मत्ती 14 अध्याय। There is an incident there. एक यहाँ पे घटना है, Jesus walking on the water, प्रभु पानी में चल के जा रहा है, and then Peter says, Lord, if it's you, let me also come. और जब पतरस ने ये देखा कि प्रभु तू है तो मुझे आने दे पानी में। 14 31, 14:26 31, verse 31. मत्ती 14 अध्याय 31 पद। Yeah, read. मत्ती 14 अध्याय 31 पद। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? Okay, now you know the incident very well. Just quickly I will tell. हमको ये कहानी पता है। Peter started walking on the water. पतरस पानी में चलने लगा। Jesus walking on the water is not a big miracle because Jesus is God. प्रभु यीशु मसीह को पानी में चलना बड़ी बात But नहीं है, Peter started walking. लेकिन पतरस यहाँ पे चल रहा है। As he started walking, and then the Bible says in that chapter says he saw the wind and the storm was coming. और जब पतरस पानी में चलने लगा तो उसने वो पानी के छाल उसको देखा, and he started singing. और वो डूबने लगा। And he called for help, and Jesus comes and helps. Okay. और प्रभु ने पतरस ने प्रभु से सहायता मांगा और प्रभु आगे उसको सहायता किया। And then when they came to the boat, Jesus asked a question. और जब वो वापस नाव पे आ गए, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को सवाल पूछा। There are some reason why he was sinking in the water. कोई कारण था कि वो क्यों पानी में डूबने लगा। Many times we have discussed this in the Bible studies and all. बहुत सारे बात हम बाइबल स्टडी में हम देख चुके हैं। There are reasons only. Number one reason is this one. He took off the eyes from Jesus. पहला कारण एक ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह से अपना एक कारण ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह से अपना दृष्टि को हटा लिया। Okay. And another reason is he started looking at the wind and the storm. और दूसरा कारण ये है कि वो इस पानी के छाल को, हवा को देखने लगा। And then he started singing. और वो डूब गया। And now listen very carefully. Jesus did not ask, why did you take off your eyes from me? He did not ask. और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे सवाल पूछा तो ये नहीं पूछा कि तुमने अपने आंख दृष्टि मेरे से क्यों हटाई, ये नहीं पूछा। And he also did not ask, why did you look at the wind and the storm? He never asked. और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ये भी नहीं पूछा कि तुझे पानी के छाल को, हवा को क्यों देखा। But he asked another question. लेकिन कुछ और सवाल प्रभु ने पूछा। Why did you doubt? उसने पूछा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? This is the main reason for sinking. यही कारण था डूबने का। It began where? Doubt begins where? In the heart. ये संदेह कहाँ शुरू होता है? संदेह हृदय में शुरू होता है। Jesus knows the heart. प्रभु यीशु मसीह को हृदय जानता है। And he was doubting the word. What is the word he heard? Come. That's what Jesus said. Come. और प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा कि प्रभु का जो आवाज था, आ जाओ, उसको ही वो संदेह करने लगा पतरस। Jesus read it from his heart. और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का हृदय को पढ़ लिया। Doubt arose in the heart. संदेह हृदय से जागने लगा। And that's the main reason. और यही मुख्य कारण था। First reason. पहला कारण यही। Second reason is took off the eyes. और दूसरा कारण है कि आंख दृष्टि हटा लिया। Third reason is looked at the wind and stopped. और तीसरा कारण है कि वो पानी के छाल को देखे घबरा गया। Fourth is singing. और वो डूब गया। He asked the question, why did you doubt? और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, तूने संदेह क्यों किया? You go back to Sarah and submit to her. और हाजिरा को बोला, तू सारे के पास जाके उसके वंश में हो ले। Root cause, you had a contempt against your mistress. जो जड़ शुरू हुआ था तेरे हृदय में, उसको तुच्छ जानने से हुआ था। You have to reconcile it. तुझे मेल मिलाप करना है। I know Sarah must have been tortured you very well. I know that. मुझे पता है कि सारा तेरे को तकलीफ दे रही है। But you began. लेकिन शुरू तो तूने किया था। You should take the initiative to solve it. तू उसको ठीक ठाक करने के लिए तुझे कदम उठाना है। My beloved, this church I always consider is a blessed place. मेरे प्रियो, इस कलीसिया को मैं एक आशीषित मानता हूँ।
God blessed this congregation because of two reasons. This is my conviction. मेरा ये मानना है कि इस कलीसिया को दो कारण से प्रभु ने आशीष दिया है। Week after week, you hear the gospel. हर सप्ताह आप सुसमाचार सुनते हैं, And week after week, you hear the call for repentance. और हर हफ्ता आपको पश्चाताप करने का मौका दिया जाता है। If you have not yet believed on the Lord Jesus, if you have not made a personal relationship with the Lord Jesus, आज के दिन तक अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में नहीं बुलाया है, you will not have God's love in your heart. तब प्रभु का प्रति प्रेम आपके हृदय में, You will be acting. आप अभिनय कर देंगे, प्यार जीवन में नहीं होगा. Okay, there will not be love in your heart. अब आपके हृदय में प्रेम प्रभु प्रति नहीं होगा। When you make a personal relationship with Jesus, love comes in your heart. जिस दिन आप प्रभु के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध बनाओगे, उसी दिन प्रेम आपके हृदय में आएगा। God wants to give you an opportunity, my beloved. प्रभु यीशु मसीह आज आपको एक मौका देना चाहता है। Reconcile with the Lord. प्रभु के साथ आप संबंध बनाओ। We have sinned against the Lord. We have sinned against the Lord. हमने प्रभु के विरुद्ध में पाप किया है, But Jesus died for our sins. He took our punishment. प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा है, He rose again, lives even today. और वो बोले उठ के आज भी वो जीवित है। Father says, whosoever believes on my son, I will make them my children. और पिता कहता है कि जो मेरे पुत्र पे विश्वास करेगा उसको मैं अपने संतान बनाऊंगा। It's free. और ये It's free. ऐसा मूल्य है, मुफ्त है। He is free. He need not pay anything. और प्रभु ने सब कुछ किया, ये सारा मुफ्त है। But the payment was on the cross. He paid. Jesus paid the price. और प्रभु यीशु मसीह में क्रूस में वो दाम को चुकाया। He will never force you to accept Jesus in your life. प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आपको दबाव नहीं डालेगा। When you believe on the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह पे जब आप विश्वास करोगे, accept His lordship in your life. आप उनके प्रभुत्व को अपने जीवन में मान लो। I tell you the right statement right now. अब मैं आपको एक सही बताऊंगा। You will get undeserved blessing one after another. आप एक करके जो आशीष के भागी आप नहीं, वो आशीष आपको दिया जाएगा, which you never deserve. आपको जो उसके आप भागीदार नहीं हो। Would you like to make a personal relationship with the Lord Jesus right now? क्या आज प्रभु यीशु मसीह को आपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना चाहोगे? In your heart, you tell these words. अपने हृदय में इस बात को कहें sincerely. बड़े ईमानदारी से, Lord, I'm sorry. प्रभु मुझे क्षमा करे, I'm a sinner. मैं पापी हूँ। Thank you, Jesus. You died for me on the cross. प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद जो आपने क्रूस पे मेरे लिए जान दी। I believe you rose again. और मैं विश्वास करता हूँ कि तू Please come into my heart and make me your child. मेरे हृदय में आ और मुझे अपने बच्चा बना। When you make that decision, अब जब ये निर्णय आप करते हो, you are transferred from hellfire to eternal heaven. आप एक नरक से आप स्वर्ग में आप चले जाओगे। Love fills in your heart. और प्रेम आपके हृदय में आएगा। Then you will never take revenge upon anyone. और तब आप किसी से बदला कभी नहीं लोगे। You will love enemies. आप अपने शत्रुओं को प्रेम करने लगोगे। Will you take that decision today? क्या वो निर्णय आप हम करेंगे? Don't go back to home without Jesus in your heart. आप प्रभु यीशु मसीह को दिल में बिना लिए आप घर पे वापस मत जाना। If you already believed on Jesus, you need not do it again. आपने प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया है तो दोबारा करने की जरूरत But नहीं है। if you have never made, today you can make that decision. लेकिन अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में नहीं बुलाया है, आज वो दिन है, आप उसको बुलाओ। Then you will love Him. अब आपको प्रेम, उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा। You can join with me in that chorus in closing. और ये गाना मेरे साथ आके हम बंद करेंगे। Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. To me is so wonderful. To me He is so wonderful. To me He is so wonderful.
To me, He is so wonderful because He first loved me. Shall we pray? हम प्रार्थना करें। हमारे महान प्रभु परमेश्वर, प्रभु कितने ही भाग्यशाली हम हैं, हम तेरी आवाज को सुन सकते हैं। प्रभु 13 साल प्रभु आज अब्राहम से तूने बातें नहीं किया, क्योंकि प्रभु वो उसकी पत्नी की बात पे आ गया। वो तेरी जो तूने प्रतिज्ञा प्रभु अब्राहम के साथ किया था, मैं तेरे अपने शरीर से तुझे वंश दूंगा, उसको उसने संदेह किया और अपनी पत्नी की बातों में आ गया। और प्रभु 13 साल तक वो तेरी आवाज को नहीं सुना। फिर भी प्रभु तू कितना महान है। उत्पत्ति 17 अध्याय के 1 पद में प्रभु फिर दोबारा उसको प्रकट हुआ और तुझे कहा, है अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे साथ चल और सिद्ध हो। प्रभु हमें तेरे साथ चलने सिखा। बहुत सारी असिद्धता हमारे जीवन में है, बहुत सारी कमियां मेरे जीवन में है। प्रभु हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, तेरे साथ होना चाहते हैं, लेकिन शरीर हमें दूर करता है, हमें बाधा देता है। प्रभु आज हम तेरे चरण में आते हैं, तो हमें अनुग्रह कर। कितनी बार हम तेरे साथ पत्रुस के साथ जैसे हम चलने चाहे, पानी में हम चलने चाहे प्रभु, लेकिन हमने अपने हृदय में संदेह किया है, हमारा हृदय ने हमें धोखा दिया है। प्रभु तो हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु जिस वचन को आया है, प्रभु हमें सहायता कर, हम तेरी वचन में कभी भी हम संदेह न करें। हम प्रभु जो प्रभु तूने बोला है कि जो तू विश्वास करेगा, हृदय में तो विश्वास करेगा, हमें अनंत जीवन मिलता है। प्रभु हमारे अपने हृदय में तुझे विश्वास करना और हृदय में तुझसे डरने वाला बना। इस वचन जो आपने सेवक के तहत अपने लोगों को, कलीसिया को दिया है प्रभु, ये 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल फला सके। और प्रभु ये जो वचन हमने सुना है प्रभु, हम अपने हृदय में रख सके और हमें प्रस्थापित बना। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। हमें दोबारा फिर एक बार आवाज सुनने को दिया। सारी बातों को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना पुरुष का नाम पे मांगते, सुन और ग्रहण कर।